I was committed to both my studies as well as business, and I was also committed to class 12. So I used to handle these all things on a day. I used to upload a video on YouTube for about my business. So I used to showcase my product there. तो वहां से मुझे ट्रैक्शन मिलता था. After that, I used to study about for IPMET for around 5 to 6 hours straight. It was helpful in Rohtak and Ranchi, but in Indore it was something like कि उनको एक पॉइंट मिल गया ग्रिल करने के लिए. Hello, everyone. Welcome to the Rodha podcast. I'm your host, Ekta, and today we have a story that proves that the path to a top B school is rarely a straight line. Today, Anurag is joining us, who is currently in the second semester of IPM program at IIM Jammu. And Anurag, welcome to the podcast. It's a pleasure to Thank have you you. here. Thank you. All right, Anurag, let's start with your roots. Tell us a bit about where you are from and ये IP मैट का कैसे दिमाग में आया आपको and all that. Sure. So I belong to the Silk City of India, also known as Bhagalpur. My 10th score was 89%, 12th score was 19%. About IPMET, I was not aware of anything about like IIMs भी होता है ऐसा कुछ type. So I had a friend who was preparing for IPMET. I got to know about IPMET from there. तो उन्होंने मुझे बताया था because I wanted to do a business. तो उन्होंने मुझे suggest किया if you want to do a business. तो like I belong to a middle class. तो my parents are not that type कि वो लोग मुझे तुरंत कॉलेज निकलते के साथ ही पैसे दे सकते हैं. So I thought the best path to go for a business that I will go to IIM, do a corporate job for like 5 to 6 years, then I can think about my business. So from there I got the interest in IIMs and IPMET. Okay, okay. And when you started preparing, were you preparing on your own या फिर कोई coaching वगैरह ली थी? I started preparing for IPMET in my class 12th when I came to class 12. I took a coaching, but unfortunately that coaching was something promotion type. So I used that coaching just for a day. After 5 days, because I thought कि ये coaching से तो कुछ नहीं होने वाला, then I started preparing on my own from YouTube videos. And one thing that I used was Ravi sir का quant का lecture topics. वो videos बहुत ही अच्छे थे. That I used that for my basics. And after that, I took another afterboard smoke and another thing. From there, I prepared for that, and I prepared on my own for a year. Okay, that was incredible. Actually, मतलब अगर स्टार्टिंग में आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो और कुछ ऐसे कोचिंग मिल जाए आपको जहाँ पे आप हाँ कंफर्टेबल नहीं हो एक्चुअली तो बड़ा स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेशन मिल जाता है राइट. हाँ. तो जब आपने वो कोचिंग स्टार्ट करी तो लाइक आपने बोला आपको फर्स्ट डे पे ही समझ आ गया था कि इधर से तो नहीं होने वाला है. ठीक हम्म. है. तो अगर लेट्स से अगर आप वो कोचिंग कंटिन्यू भी कर रहे थे एक दिन भी आपने देखा आपने उसमें इतना इन्वेस्ट किया है तो वहां से आपका सेटबैक कैसे हुआ फिर मतलब क्या सोचा कि एक बार मतलब ऐसे दिमाग में नहीं आया कि यार अब तो क्या ही होगा टाइप्स. तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. तो जैसे ही मैंने परचेस किया, मैंने मॉड्यूल्स खोले एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग लेक्चर्स ऑफ द जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो मैंने स्टार्ट किया देखना. मैंने एक खोला, आई थिंक दैट वाज ऑफ नंबर सिस्टम. I opened at YouTube. I opened at video. The lecture was of 1 hour. उसमें से 45 minutes तो उनका पोस्टर लगा हुआ है कि परचेज आवर कोर्स, परचेज आवर दिस, परचेज दिस मॉड्यूल, वो लगा हुआ था पूरा. ओके. एंड जैसे ही मैंने ये देखा, आई थॉट कि मुझे लगा ये सिर्फ एक वीडियो में होगा. आई ओपन ऑल द वीडियोस, सारे में सेम प्रॉब्लम थी. माय गॉड. एंड आई थॉट ओके कि हो उसके गया बाद मेरा. फिर हाँ तो उसके बाद फिर आपने सेल्फ स्टडी पे स्विच किया हाँ. यूट्यूब से एंड ऑल दैट. ठीक है. सो यू फॉर लाइक मेंशन अराउंड अ आपने वीक, एक वीक तक मैंने वो कोर्स छोड़ ही दिया था. आई थॉट कि मेरे से IPMET नहीं होने वाला. देन आफ्टर अ वीक आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन माय ओन. ओके. एंड जब आपने यूट्यूब से आपने बोला रवि सर के लेक्चर्स आपने देखे थे राइट तो वाज इट हेल्पफुल लाइक क्वांट के सेशंस आपने बोला आपने रवि सर के देखे थे हाउ हेल्पफुल वर द सेशंस फॉर यू. इट वाज सुपर हेल्पफुल टू बी ऑनेस्ट. रवि सर का जो वो पढ़ाने का टाइप है, लाइक ही यूज्ड टू गो इन डीप इन बेसिक्स, एंड एज ए नॉन मैथ स्टूडेंट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन मैथ. तो मुझे वो बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी.
to build the concepts of the all the lectures. Okay. And other than studies, आप साथ में और भी कुछ कर रहे थे या like fully preparing? Other than studies, I had a business, online business named Nisa Fabrics. So Okay. I continued that business on till full of my preparation. I was committed to both my studies as well as business, and I was also committed to class 12. So I used to handle these all things on a day. So you had three things basically, 12th and preparation and your business. Yeah. That must be very hectic यार, मतलब काफी ज्यादा bandwidth आपका चला जाता है. तो how did you manage all three of them together? So what my usual day was that when I used to wake up at around 8 or 9, I used to upload a video on YouTube for about my business. So I used to showcase my product there. तो वहां से मुझे traction मिलता था. After that, I used to study about for IPMET for around 5 to 6 hours straight. And then I used to give around 2 to 3 hours for my 12th. Also, I had a coaching of class 12, not about IPMET. So I used to go there. Okay, but that is like incredible having a real world business before even stepping into a B school. I think it's a huge advantage. आपके interviews में भी काफी help हुआ होगा I think इससे तो. It was helpful in Rohtak and Ranchi, but in Indore it was something like कि उनको एक point मिल गया grill करने के लिए. Grill करने के लिए, right? हम्म, Okay, okay. So आपने कौन-कौन से colleges के interviews दिए थे? इंदौर, रोहतक and इंदौर, रोहतक, रांची, सिरमौर, तापनी and निर्मा. okay, all right, cool. Okay, and I would ask you one thing. Right now you're sitting in IIM Jammu, right? Yes. कैसा experience है IIM Jammu का? Campus life कैसी चल रही है? This experience is pretty good. When I entered, तो मैं आपको पूरा experience बताता हूँ. When I was coming to this college, तो before IIM there is a IIT Jammu. वहां से IIM Jammu का टावर दिखता है वो पूरा कैंपस. I was in the camp और मैं उस टाइम से हंसे जा रहा हूँ बस. I had a smile on my face कि wow, I had achieved something. When I entered my college, my parents were so happy. When I came to room, I saw कि oh, single single occupancy room है. That was something अरे that I वाह. will never forget. ये तो बेस्ट ही मिल गया फिर मतलब. हाँ हाँ आई थिंक सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल गया तो फिर तो ऐसा हो जाता है कि बढ़िया है अब तो, हाँ. है ना, डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा. बढ़िया है. ठीक है. Yeah. अच्छा, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग तो आपके लिए व्हिच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन? QA. Anyway, QA. Like to be honest, when I gave my first mock, I scored 8 marks on MCQ section, and my overall score was 60. ओके. तो QA was toughest, but like I used to grab anything वो मेरे से नहीं होता था. And there had been a days जहाँ की मैं रो रहा हूँ just because कि मेरे से question ही solve नहीं हो रहा है. So the मतलब only अगर thing, मार्क्स में भी स्कोर नहीं आ रहा है तो आई थिंक वो तो एक हो जाता है कि अब हम्म, क्या ही होगा, टाइप कैसे होगा. हाँ, राइट. बट like ओके. I used यस. to practice a lot, but बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो कि मेरे से बनती ही नहीं थी. तो that was part जो कि बहुत tough था. तो फिर आपने क्यूए का प्रैक्टिस कैसे किया फिर, मतलब अगर But आपको मार्क्स में भी कम मार्क्स आ रहे हैं ऑल दैट तो मतलब वहां से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अब क्यूए पे बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, राइट? हम्म, तो आपने what किस I तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी, स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? what I used to do कि जब मुझे लगा कि QA तो मेरे से नहीं होने वाला, तो I thought कि let's give mock. मैं mock देता था हर week around once a week. What I used to do, जितने भी mocks में question आते थे QA के, I used to practice them, क्योंकि that was something कि उससे बहुत अच्छा concept building हो जाता था. एंड धीरे धीरे आई हैड अ नोटबुक ऑफ अराउंड लाइक 500 पेजेस जिसमें सिर्फ क्यूए के क्वेश्चन थे. आई यूज टू रिवाइज कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर, एंड धीरे धीरे आई बिल्ड लिटिल लेवल कि वहां पे मैं एक कंडीशन आ गया जहां पे आई एम सेटिस्फाइड विथ माई स्कोर. ओके. एंड बाकी एलआर एंड वीआरसी आपका कैसा था? वीआरसी जब मैं स्टार्ट करा था उस टाइम तो बहुत खराब था, बट आफ्टर लाइक 6 to 7 months आई वाज स्कोरिंग 140 इन सेक्शनल, एंड एलआर वाज समथिंग इजी क्योंकि वो मुझे सारे कॉन्सेप्ट पहले से ही आते थे. ओके.
Okay, but beyond the subjects themselves, what was the hardest part of your daily routine? क्योंकि आपको तो इतनी सारी चीजें मैनेज करनी है साथ में. तो हम्म what was the hardest part? to be consistent, to be consistent, to be focused on your what you are doing, वो बहुत ही hardest part था मेरे लिए. Okay, yes, consistency is what matters when you're preparing for हम्म a competitive exam. Exactly. So when you're preparing for an exam, it's like कभी भी आपका खराब भी होता है या कुछ भी होता है, it's like just keep doing it, keep practicing, and don't step off the board, which I think हम्म is the one thing anyone would do. And okay, let's just fast forward it to the D-Day. हम्म आपको इतने ups and downs आपके हुए थे, so मैन लाइक आपने बिजनेस हैंडल करना है या सब कुछ करना है, तो हाउ डिड योर एक्चुअल एग्जाम गो, मतलब उस डी डे पे आपके साथ क्या हुआ था? Okay, so the first exam was of JIPMET on 26 April. ओके. बिफोर लाइक एग्जाम मैंने 2-3 दिन तक बुक वगैरह कुछ नहीं छुआ था, बिकॉज आई थॉट कि अब जो होना तो हो गया, नाउ आई कांट डू एनीथिंग. आई वेंट देयर फॉर जिपमेट क्योंकि बस उससे मैंने 1-2 घंटे पहले रिवाइज वगैरह कर लिया था कॉन्सेप्ट्स. आई वेंट देयर, द एग्जाम स्टार्ट हुआ. आई टुक द क्यूए सेक्शन. उसमें से फर्स्ट 5 क्वेश्चन एक भी नहीं बने. आई ट्राइड, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मेरे से. एंड आई वाज स्वेटिंग कि ओ शिट, कुछ नहीं होने वाला अब तो. देन आई टुक अ सिप ऑफ वाटर. देन आई जंप टू एलआर सेक्शन. उसमें से आई थिंक आउट ऑफ 32-33 क्वेश्चन आई सॉल्व 28 क्वेश्चंस. उसके बाद फिर आई वेंट टू वीए सेक्शन. उसमें से सारे सॉल्व हो गए थे. आफ्टर दिस 2 सेक्शन आई हैड अराउंड 50 मिनट्स. तो आई ट्राइड, देन जो भी क्वेश्चन मेरे से हो रहे थे मैंने वो स्टार्ट किया सॉल्व करना क्यूए के, एंड अराउंड 23-25 क्वेश्चन मेरे से हो गए थे. ओके, बट मतलब आई हम्म, थिंक क्यूए सेक्शन में स्टार्टिंग में ये 5 हाँ क्वेश्चंस जो आप बोल रहे हो बना ही नहीं, दैट साउंड्स लाइक अ हाँ नाइटमेयर. मतलब एक हाँ होता है हाँ ना, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो एंड वो प्रेशर फील होने लग जाता है, दैट्स हाँ, बहुत ज्यादा वो. क्रेजी. लाइक वहां पे यस. एसी चल रहा था बट आई वाज स्वेटिंग अ लॉट. आई वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग. तो वो एग्जाम के मतलब जब वो 5 क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, आपके दिमाग में आया था कि अब तो होगा ही नहीं कुछ भी? हाँ, द फर्स्ट थॉट वाज कि हो गया जिपमेट. जिसमें मैं सबसे बेस्ट था, जिसमें मैं सबसे अच्छा मेरा स्कोर आ रहा था, वही चला गया अब तो. तो उसके बाद तो दिमाग से निकल ही गया होगा कि अब तो वापस देना पड़ेगा यार. हाँ हाँ, तो वही मेरे माइंड में था कि अब तो फिर से जिपमेट देना पड़ेगा या फिर पूरा आईपी मेट जर्नी फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज इन आईपी मेट इंदौर आई वाज नॉट स्कोरिंग एट पार विद द स्टैंडर्ड, क्योंकि मेरा स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था. बट इट वाज लाइक कि कट ऑफ क्लियर हो सकता है बट नॉट द इंटरव्यू, ऐसा था. ओके. ओके. ऑलराइट. अनुराग, टेल अस समथिंग अबाउट योर आई एम इंदौर का इंटरव्यू. ओके, सो आई एम रोहतक वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू. देन आई वेंट फॉर द आई एम इंदौर. वो मेरा कोलकाता में सेंटर था. आई वेंट देयर. आई वाज नर्वस बिकॉज इंदौर वाज समथिंग कि वो मुझे पहले से ही थोड़ा नाइटमेयर टाइप लगता था, क्योंकि उसमें स्कोर्स मेरे अच्छे आते नहीं थे. आई वेंट इनसाइड द डोर. जैसे गया वहां पे एक बोतल रखा हुआ था. दे पॉइंटेड टू दैट बोतल. इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखा. ओह माय आई वाज गॉड. स्टन्ड. मेरे से कुछ उस टाइम मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था. देन आई आस्क्ड टू सिट. उन्होंने बोला कि हाँ बैठो और सॉल्व करो इसको. स्टार्टेड सॉल्विंग. तो मैंने पार्सली करेक्ट आंसर दिया था. उसके बाद फिर दे स्टार्टेड अबाउट माय एक्सपीरियंस, लाइक माय 11th-12th का शेड्यूल, बिकॉज जैसे ही मैंने बोला कि आई हैड अ बिजनेस, उन्होंने उनको ज्यादा इंटरेस्ट मेरे शेड्यूल पे था कि तुम 11th-12th क्या कर रहे थे. और द थिंग इज कि आई एम अ नॉन स्कूलिंग गाय. मैं 11th-12th स्कूल नहीं किया हूँ. तो दे आस्क्ड मी अबाउट माय शेड्यूल कि तुम पूरे दिन करते क्या था जब स्कूल गए ही नहीं हो तो. द क्लासिक स्ट्रेस टेस्ट था मतलब. हाँ ओके. बट सारे इंटरव्यूज में से कोई ऐसा इंटरव्यू था कि थोड़ा सा लाइक द पैनल एक्चुअली लेट यू ब्रीथ, जहाँ पे? हाँ, रांची रांची वाज द बेस्ट इंटरव्यू दैट आई हैव एवर गिवन. रांची. उन्होंने, द पैनलिस्ट वर सो चिल. वो लोग मुझसे बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंड एकेडमिक वाज जीरो. एक भी एकेडमिक क्वेश्चन नहीं थे. दैट वाज ऑल अबाउट माय बिजनेस एंड ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी. ओके, तो वहाँ तो फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं हुआ होगा क्योंकि बिजनेस के बिल्कुल बारे भी में नहीं. तो
of course you know हम्म everything. आई थॉट कि मेरा आई एम रांची तो इजीली हो जाएगा, बट व्हेन द वेट लिस्ट केम आई वाज अराउंड एट 8 वेट लिस्ट. 8 week list. Okay. हम्म Okay, okay, okay. So, जब आप prepare कर रहे थे, मतलब now you're sitting in IIM Jammu, of course, but when you were preparing, तो you know everyone has this dream college, है ना? तो आपका dream college कौन सा था? And if it was IIM Jammu, तो like जो आप अब आप IIM Jammu में बैठे हो, तो is it exactly same as you imagined? ओके. सो ड्रीम कॉलेज तो ऑब्वियसली आई एम इंदौर था उस टाइम. देन वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट आई एम शिलोंग, एंड आई एम शिलोंग वाज समथिंग कि मुझे बहुत पहले से पसंद था. So Anurag, when a student is preparing for a competitive exam, तो सबका ना एक ड्रीम कॉलेज होता है. बीट एंड कैट में लोगों का होता है अहमदाबाद बैंगलोर जाना है, ठीक है. आईपी मैट में भी सबका होता है. सो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा था? फर्स्टली व्हेन आई एंटर्ड इन दिस आईपीमेट जर्नी, तो मेरा ड्रीम कॉलेज ऑब्वियसली आई एम इंदौर ही था. बट जब मुझे पता चले कि आई एम शिलोंग भी आने वाला है, तो आई वाज फैसिनेटेड अबाउट आई एम शिलोंग, क्योंकि वो कॉलेज मुझे बहुत पहले से पसंद था. Okay. बट जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, दैट वाज मैथ्स कंपलसरी. तो मेरा कोई चांस ही नहीं था, बिकॉज आई हैड अ नॉन मैथ बैकग्राउंड. Okay. बट दैट वाज समथिंग दैट आई डिडंट लाइक. वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था उस टाइम. एंड माय बट माय ड्रीम कॉलेज वाज आई एम इंदौर. ठीक है. बट नाउ यू आर सिटिंग इन IIM जम्मू, तो मतलब जम्मू ज्वाइन करने से भी पहले आई थिंक आपके कुछ तो एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे इस कॉलेज से, राइट? आपने रिसर्च भी अपना किया होगा. तो हाउ इज इट लाइक बीइंग इन जम्मू? मतलब is it at par with your expectations? ओके. सो जब मुझे ये पता था कि मेरा आई एम इंदौर तो नहीं होने वाला, तो मेरा ये चीज क्लियर था कि आई विल गो टू आई एम जम्मू, बिकॉज आई ऑलरेडी बिलोंग टू बिहार. आई डोंट वांटेड टू बी बिहार इन बिहार. तो इसलिए मुझे बिहार से निकलना था. दैट्स व्हाई आई चोज आई एम जम्मू. एंड व्हेन आई केम हियर, टू बी ऑनेस्ट, इट इज मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. Very nice, very But nice. there is only one thing that I didn't like about this college. I have seen so many people here जिसको कुछ लाइफ में करना ही नहीं है. Like they are just here कि हाँ बस आई एम में आ गया, बस अब तो हो ही जाएगा जो होना है. Okay, मतलब कॉलेज में आने के बाद they're not taking it seriously. हम्म ठीक है. सो मतलब बेसिकली यू मीन कि कॉलेज में आप एंटर कर रहे हो, दैट्स वन थिंग, बट कॉलेज में जाने के बाद इफ यू नॉट preparing, if you're not struggling with anything, कुछ भी नहीं कर रहे हो अगर आप, तो college won't do anything for you, right? Yes. The That's one right. advice that I will give कि अगर कॉलेज में आए हो, don't think कि you are settled. You will have to work more harder than in your IBMET journey. Right, right. Okay, so like you mentioned that you have a non-math background, right? So non-math background, now I understand quant में क्यों ही issue हो रहा हो. I understand that totally. ठीक है. बट नॉन मैथ बैकग्राउंड होने के बाद फिर आपका बेसिक्स वगैरह करने में आपको काफी प्रॉब्लम रहा होगा, नहीं? हाँ. लाइक आई यूज टू वॉच. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे. टू बी ऑनेस्ट, आई हैड वॉच्ड एसएससी का भी वीडियोस. मुझे कहीं से भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, वो भी वीडियोस में देखता था. ओके, ओके. ग्रेट है यार. मतलब इतना सब कुछ बता दिया है. आई मीन ऑलरेडी इतनी यंग एज में आपने काफी कुछ अचीव कर लिया. नाउ आई थिंक यू आर आल्सो डूइंग गुड इन कॉलेज. आई होप यू आर डूइंग गुड इन कॉलेज, राइट? सो ऑलराइट अनुराग, before we wrap up, if you had to give one advice other than this, ki working hard in college, for the students who are preparing right now for IPMAT, if you had to give one advice, be very honest with it, जो आपके जर्नी से आपने सीखा था, जो आपको लगता है कि शायद आपने किया बट स्टूडेंट्स को करना नहीं चाहिए, so what would it be? ओके. सो फर्स्ट एडवाइस दैट आई विल गिव कि जो चीज करना चाहिए, वन थिंग दैट मैंने नहीं किया, दैट वाज एनालाइजिंग मॉक्स. मैं बहुत अच्छे से मॉक्स को एनालाइज नहीं करता था. आई यूज टू गिव मॉक. सबसे पहली बात कि मॉक्स दो एज मच एज यू कैन गिव, एंड एनालाइज इट. अगर एक मॉक अगर 2 घंटे का, एनालाइज इट फॉर 3 to 4 hours.
because that will give you more clarity ki where you stand. Okay. And the advice for not doing is कि बहुत सारे resources के पीछे मत भागो, stick to one resources and focus on that only. Great, great. So, matlab, work on yourself, work on your concepts, and just do not stop वहाँ पे अगर आपको किसी mark से demotivation हो रहा है या कुछ तो just don't stop, analyze the mark, अपनी गलतियाँ realize करो and work on it. Yes. Perfect, Anurag. This is, I think, a perfect note to end on. And thank you so much for joining, Anurag, and Thank you so much. for sharing so many things from your journey, from your experience, and for proving that grit and resourcefulness can get you all the way to an IIM. It was really nice talking to you, Anurag. Thank you. Thank you so much.